ایک اور ایکسٹینشن شہباز شریف کے لیے وزیر اعظم بنتے ہی ایک نیا امتحان، اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتے ہی وزیر اعظم کی میز پر ایک ایکسٹینشن کی سمری پہنچی ہے۔ اس حوالے سے عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جبکہ دوسری جانب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بہت بڑی سزا سنا دی گئی ہے اور آپ کے اور میرے قاضی نے انصاف کا بول بالا کر دیا ہے۔ اب پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی اور پاکستان کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اور وہ بلنڈر اب الیکشن کمیشن کے اپنے سر پڑ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ایک سنہری موقع آ چکا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پہ پھنس چکا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ کر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لازمی سپورٹ کریں۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، بہت دلچسپ ہیں، اور اس وقت پورے کا پورا سیاسی منظرنامہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو اختیار کر چکا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ابھی بھی ایز آف وی اسپیک ایک گرینڈ الائنس کی طرف پاکستان تحریک انصاف جانا چاہ رہی ہے۔ ایک طرف تو اب معاملات جو ہیں وہ یکسر بدل چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، جہاں پر پی ٹی آئی کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بلکہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو اس جلسے کے بہترین انتظامات جو ہیں، وہاں پر جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز پرووائڈ کی جانی ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس کی طرف سے سیکیورٹی، اس کے انتظامات کے حوالے سے بھی اہم ترین ہدایات جاری ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ چکی ہے، اور اب جو اتوار کے دن پاور شو کے پی میں ہوگا، جس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی۔ کپتان کی کال ہے تو پاکستان کے ہر شہر سے لوگ نکلیں گے، پاکستان کے ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں لوگ نکل کر دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے پرامن رہ کر۔ لیکن جو خیبر پختونخوا میں اتوار کے دن ہونا ہے، اس سے آلریڈی بہت سے لوگ پہلے ہی ڈر چکے ہیں، بہت سے لوگ لرز چکے ہیں، اور اس سب میں ایک طرف تو پی ٹی آئی وہ بات ہے نا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، لیکن گرینڈ الائنس کی طرف بھی بات جا رہی ہے کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں انہیں ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا تھا کہ اپوزیشن میں آ جائیں، اور وزیر اعظم کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کہیں آپ ہماری تحریک کا نشانہ نہ بن جائیں۔ جے یو آئی پنجاب کی جنرل کونسل سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، دیہات میں جا کر لوگوں کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ فلاں امیدوار کو ہمارے حق میں بٹھاؤ، ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اگر ہم نے ثبوت پیش کیے تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی، یعنی ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے دھاندلی نہیں بلکہ پیسے لے کر کرپشن کر کے دھاندلی کرنے کا الزام بھی مولانا صاحب لگا چکے ہوئے ہیں۔ سربراہ جے یو آئی فے نے خدشہ ظاہر کیا کہ خدا نہ خواستہ میں اس ملک کو بنگال کے حالات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نمائشی ادارے کی ہے، جبکہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہے گی تو اہمیت کھو بیٹھے گی، ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپنی مرضی سے لائی جا رہی ہے تاکہ مغربی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ جمہوریت کو کفر قرار دینے والوں سے ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی، لیکن انہوں نے ایک چیز یہ کہی ہے کہ شہباز شریف کو میں نے کہا تھا اپوزیشن میں بیٹھو، میں نے شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ اب جو تحریک اٹھنے والی ہے آپ اس تحریک کی زد میں بھی آئیں گے، اور کہیں آپ اس تحریک کا نشانہ نہ بن جائیں، کیونکہ بات جو ہے وہ گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی نے پلڈاٹ کے انتخابات پر جائزہ رپورٹ کی روشنی میں نتائج کے آزادانہ آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق انتخابات کی شفافیت پر سوالات الیکشن کمیشن سے جواب کے متقاضی ہیں۔ پلڈاٹ کی حالیہ رپورٹ الیکشن کمیشن کے مجرمانہ کردار کی توثیق ہے۔ انتخابی شیڈیول میں تاخیر سے لے کر موبائل سروس کی بندش نے انتخابات کو کم ترین منصفانہ ثابت کیا۔ ترجمان نے کہا کہ عوام کے ووٹ پر شب خون کے ذریعے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اس مذموم منصوبے کا انکشاف کمشنر راولپنڈی کی زبانی پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے
फॉर्म 45 मुकर्ररा वक्त के बाद शाया कर चुका है। जाली फॉर्म 45 ने नताइज में गैर कानूनी रद्दोबदल को कौम के सामने बेनकाब कर दिया। चोरी शुदा मैंडेट पर कायम हुकूमत मुल्क के लिए फैसले करने की अहलियत नहीं रखती। मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट का मंसूबा सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बायस बनेगा। तर्जुमान ने कहा कि गैरत का मुजाहरा करके चोरी शुदा नशिस्तें हकीकी हकदारों को वापस की जाएं। पिलडाट फाफन की मुतलका इलेक्शन रिपोर्ट्स की रोशनी में नताइज का आजादाना ऑडिट किया जाए। चोरी शुदा मैंडेट की वापसी के लिए आइन और कानून के तहत जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अब ये एक बहुत आम तरीन स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमान की तरफ से। पेशावर हाई कोर्ट ऑलरेडी 13 तारीख तक 13 मार्च तक स्टे ऑर्डर दे चुका है 5 रुकनी बेंच जो है। और ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली आती है और विफाकी यानी कि कौमी असम्बली को भी इस वक्त ब्रेक लगी है। वहां पर जो इन्होंने मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों में जो बंदर बांट की है, लूट सेल लगाई है, माल गनीमत समझ के इन्होंने मुफ्त का माल समझ के इस तरह से उसकी तकसीम कर दी है, वो हल्फ लेने से रोका गया है। तो पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से भी राब्ता किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस साहब हैं जी ये लाहौर हाई कोर्ट के आबिद अजीज शेख, ये नाज़रीन कराम इस दरखास्त पर समाअत करेंगे और ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट ने भी आने वाले दिनों में बहुत कुछ वाज़ेह करना है। अब एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसे गैबी मदद कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 45 कल जारी की है, जो अपलोड कर दिए परसों इन्होंने, और फॉर्म 45 जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट्स पर जारी किए उसके बाद जो कोहराम मचा, चीजें सामने आई और सीधी सीधी कटिंग की हुई है, री राइटिंग की हुई है, पीटीआई के वोट्स कम नजर आ रहे हैं हर फॉर्म 45 के अंदर। ये इतना बड़ा सबूत आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई के कैंडिडेट्स के पास एक अपना फॉर्म 45 भी है, इसके अलावा टीएलपी वालों का फॉर्म 45 भी है, जमात इस्लामी का दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म 45 भी हैं। वो सारे 5-6 कॉपीज ऑफ द फॉर्म 45 जो ऑथराइज्ड कॉपीज होती हैं ऑफिशियल फॉर्म 45 की, उनमें कुछ और है। और फिर जो इन्होंने फॉर्म 45 बनाया है वो उसी फॉर्म 45 के ऊपर री राइटिंग करके बनाया गया है। इस चीज ने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त बड़े बड़ों के मंसूबे इस एक इकदाम की वजह से इनके गले पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में एक ऐसा इनका पॉइंट आ चुका है कि उसे यूज करके पीटीआई पूरे का पूरा टेबल्स ही टर्न कर सकती है। और ये पूरी हुकूमत जो इस वक्त कायम की गई है जो कि हाउस ऑफ कार्ड्स है, और ये उसी तरह से मुनहदिम हो जाएगी जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स जो हैं वो मुनहदिम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी और पीटीआई इस सारे मामले के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी स्ट्रैटेजी लेकर चलेगी। इलेक्शन कमीशन ने ये जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इन्होंने अपने हाथ काट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिए हैं। इसमें मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपका और मेरा काजी हमारे मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब, उनकी प्रायोरिटीज बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ तो एक सियासी जमात का मेरे काजी की अदालत से नदीम मलिक साहब के बकौल सियासी कत्ल हुआ, उन्होंने लिखा था जुडिशियल मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वही काजी साहब जो हैं वो 44 साल के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ऊपर अदालत लगाकर उसमें ये कह रहे हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। दिलावल के आंसू भी जायज, हर चीज जायज, लेकिन इस सब में एक सवाल तो पैदा होता है कि आज अगर किसी को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा तो क्या 44 साल इस कौम को इंतजार करना पड़ेगा? क्या यही हमारा निजाम अदल है? और क्या इसी तरह से इस मुमलिकत खुदादाद को सरजमीन बेआइन बनाया जाता रहेगा? अच्छा, काजी साहब की प्रायोरिटीज बड़ी दिलचस्प हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के पीछे हमारे मोहतरम जनाब काजी फायज ईसा साहब हैं, ऑल्दो उनके अपने करीबी जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब उनके कैंप के हैं। उनके खिलाफ रेफरेंस को बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के पीछे जिस तरह से लग गई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो भी हमने देखा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें घेर लिया गया है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन था कि जो जज रिटायर हो जाए या अपना ओहदा छोड़ दे, हाजिर सर्विस ना रहे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चल सकती। मेरे काजी ने अदल के तकाजे पूरे करने के लिए एक नया बेंच बनवाया, एक नया बेंच बना, उसने नया फैसला दिया, नया फैसला आया तो उस फैसले के बाद फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चलाई और आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ फैसला जो है वो आ चुका है। अब ये फैसला भी मैं आपको सुना देता हूं और मैं उम्मीद यही कर सकता हूं
हूं कि इस फैसले के बाद दूध की नहरें बहेंगी। इस फैसले के बाद मुल्क के अंदर मावराए आईन और मावराए कानून जो इक़दाम हो रहे हैं, लोगों की चादर चार दीवारी का तक़द्दुस जो पामाल हो रहा है, वो हर चीज़ रुक जाएगी। इससे पाकिस्तान के निज़ाम अदल का ऐसा बोलबाला होगा जो ना इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में हुआ, ना आइंदा होगा, क्योंकि प्रायोरिटीज हमारे मोहतरम काजी फायज ईसा साहब की यही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें उहदे से बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है। काउंसिल ने सदर मुमलिकत को अपनी राय भेजते हुए कहा कि मज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए। 11 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट मुस्ताफी होने वाले जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अवामी एतमाद का शफाफियत से बराह रास्त ताल्लुक है। काउंसिल के सामने यह सवाल है कि जज के इस्तीफे का कार्रवाई पर क्या असर होगा। अब यह सारा मामला चला और इसके एंड पर यह मामला बना है कि जी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्हें बरतरफ, ताकि उन्हें उनकी मराहत ना मिल सके और उनसे उनकी मराहत जो है वो वापस ले ली जाए। यह काम किया, इंसाफ का बोल बाला हो गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त एक अहम तरीन सरकारी अफसर हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जो है या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, उनमें आपको पता है कि एक्सटेंशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो इससे पहले एक्सटेंशंस लेते रहे हैं। जनरल बाजवा ने भी एक्सटेंशन ली, उन्हें तो एक्सटेंशन सब ने मिलकर दी। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, ऑपोजिशन की सारी जमातों ने भी मिलकर दी, यूनानिमसली दी, एक कंसेंसस था, दी, सही दी गलत दी, वो तो अब आज जाके चीज़ें क्लियर हुई हैं। अच्छा, उससे पहले भी अशफाक परवेज़ कियानी साहब हैं, उनकी एक्सटेंशन थी। जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ साहब नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि वो कभी किसी को एक्सटेंशन ना दें, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब जो डीजी आईएसआई हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उनकी भी एक्सटेंशन थी, शहबाज गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुई, लेकिन जो निगरान हुकूमत है, निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने फिर ये कंफर्म किया था कि पॉलिसी तसलसल को बरकरार रखने के लिए जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं, जो कि इस वक्त हमारे मौजूदा डीजी आईएसआई हैं, उनको भी एक्सटेंशन दी गई थी। तो अब एक और एक्सटेंशन का चर्चा है। वजीर आजम को इक़्तिदार संभालने के साथ ही एक बहुत बड़ा फैसला दरपेश है। अहम सरकारी अफसर की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की समरी वजीर आजम को इरसाल हो चुकी है। विफाकी हुकूमत ने मंजूरी दी तो यह मुल्की तारीख में दूसरी तौसीह होगी। अहम सरकारी अफसर की मुलाजमत में तौसीह की समरी वजीर आजम को इरसाल हो चुकी है। और इस सब के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि सर्विसेज चीफ्स में से कोई एक चीफ है, जो कि आर्मी चीफ तो नहीं है क्योंकि उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म नहीं हो रही, एक सर्विस चीफ है जिनका ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पे चल रही है बात, और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी रिपोर्ट की है। इसलिए मैं इसे कहूंगा कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि एयर चीफ जो कि 18 मार्च को मुद्दत मुलाजमत उनकी खत्म हो रही है, तो दारुल हुकूमत की फजाओं में यह सरगोशी चल रही है कि जी एक्सटेंशन जो है वो उसकी तरफ बात जा रही है और एक्सटेंशन उन्हें मिल सकती है। सो लेट्स सी क्या नवाज शरीफ साहब या फिर पीएमएलएन जो है वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे चलेगी और एक्सटेंशंस जो है वो पीएमएलएन के दौर में किसी को नहीं मिलेंगी, या फिर एक और इसके दूर रस नताइज भी होंगे, क्योंकि अगर ये एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर मजीद एक्सटेंशंस जो है, और इवन तो अब तो काजी साहब की एक्सटेंशन की भी बातचीत चल रही है 2/3 अक्सरियत के बाद आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है या फिर उसकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए, फिर काजी साहब ज़्यादा अरसे तक मेरे मुल्क के चीफ जस्टिस रह के बेहतरीन इंसाफ कर सकेंगे। तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं। सो लेट्स सी क्या एक्सटेंशंस का एक सीजन आने वाला है या फिर एक ही एक्सटेंशन है, और ये तो अभी समरी है, इख्तियार तो वजीर आजम पाकिस्तान का होता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।